Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Rababa Rashandana Barabare Garethena Shandana Barabale Garethena Ba. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Father. Hallelujah, 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 hallelujah. Father, thank you. Father, thank you, Lord Jesus. 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 Hallelujah. 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 It is live going on YouTube, but we are not getting the video. Hallelujah. Rabba Rashantana Baraba Reba. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Rabara Shandana Barabari Karethena Shandana Barabalaba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Father. Hallelujah. जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्रभु के नाम की महिमा करें कुछ समय के लिए प्लीज. Hallelujah. 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 Rabara Shantana Barabari Garethena Shantana Barabalaba. Hallelujah. जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं धन्यवाद करें प्रभु का. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Rababa Rashantana Barabari Garethena Shantana Barabali Gare. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Father. Hallelujah. Rabba Rashandana Baraba Regarete. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Please, sometime we have to wait. Hallelujah. Rabara Shandana Barabarega Retina Shandana Barabalabarabalega. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Riba Baba Nashandana Barabarega Retina Shandana Barabarega Retina Baraba. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Father. Hallelujah, 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 hallelujah. Rabara Shandhana Baraba Likharet. Hallelujah. Please, I'm sorry for your delay. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah, 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 hallelujah. आज थोड़ी सी ये थे कि हम लोग कोई ऐप के साथ जो थे वो लाइव करने की कोशिश कर रहे थे साथ में, लेकिन वो शो नहीं हो रहा था. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. हाँ भी शो. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Father. Hallelujah, 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 hallelujah. सब जन ज्वाइन कर रहे हैं, जो प्रभु के नाम की महिमा हो, धन्यवाद हो. जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर,
और फेसबुक पे ऊपर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। रीमा न शंदाना बारा बारे कारते न शंदाना बारा बाला बारे कारते न शंदाना बारा बाला बा या गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्रभु के नाम की महिमा हो, खुदा उनके नाम को जलाल मिले। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि लाइव आज का जो है वो हर तरफ से बढ़िया चले। और आज 3 जगह पर लाइव लगा हुआ है और यूट्यूब पर 2 जगह पर लगा हुआ है, लाइव चल रहा है। लेकिन आई डोंट नो कि एक वीडियो शो क्यों नहीं हो रही है। मैं सर्च कर रहा था लेकिन शो नहीं हुई। और दूसरा जो अभी शुरू हो चुका है लाइव, और फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है। प्रभु के नाम की महिमा हो, खुदा उनके नाम को सारा इज्जत जलाल महिमा हमारे जीवित परमेश्वर के नाम को मिले, हमारे खुदावंत के नाम को मिले। आइए सब जन धन्यवाद करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु आज के समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया, खुदा हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु एक एक जन को ब्लेस करता हूं प्रभु। जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह के जिंदा नाम में प्रभु हर एक जन को प्रभु आशीषित करता हूं खुदा। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आज आप एक एक जन को ब्लेस कर रहे हैं। आज आप एक एक जन को ब्लेस कर रहे हैं खुदा। आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल, आपका मसा पूरी तरह से खुदा खबर कर रहा है खुदा हालेलुया। प्रभु आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं खुदा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु एक एक जिंदगी में प्रभु बड़ी ब्लेसिंग का कारण हो जाए खुदा। और हर एक जन प्रभु जो सीखे खुदा वो यीशु के नाम में प्रभु यीशु मसीह उनको स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु तैयार करे खुदा। धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस लाइव सेशन में। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो, खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, खुदावंद आप सबको आशीषित करे। जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं और हमारे साथ आ रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको बहुत 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 आशीषित करे। और आज रियली वी आर ब्लेस्ड के आप सब जन जो हैं वो जल्दी जल्दी आ चुके हैं। और मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं कि आप जो भी लोग हैं, चर्च में जाने वाले लोग हैं और खुदावंद को जानते हैं, और मैं सबसे पहले आपको एक मेन क्वेश्चन जो मैंने कल भी किया था कि आप चर्च के बारे में क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन, जब आप कलीसिया शब्द सुनते हैं तो अब क्या आपके माइंड में आता है? कलीसिया, क्या कलीसिया है? हालेलुया। कौन है कलीसिया? हालेलुया। और जल्दी से आप जन का मैं रिप्लाई चाहूंगा, जल्दी से मैं आपके रिप्लाईज पढ़ूंगा कि आप कलीसिया के बारे में क्या सोचते हैं। आप सबके रिप्लाईज मैं पढ़ूंगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का विषय जो है वो बहुत 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 जबरदस्त होने वाला है और डेफिनेटली आप जो है ब्लेस होंगे। और आपने नहीं सुना होगा जो मैं बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूं, और परमेश्वर जो है वो आपको बहुताई से इस्तेमाल करेगा आने वाले दिनों में। हालेलुया। राबा रशंधेनबा। जो फेसबुक पर देख रहे हैं, सब जन शेयर करें, जल्दी से शेयर करें, हर एक ग्रुप्स में शेयर करें। हालेलुया। राबा रशंधनबा राबा लेगा रथे नशंधनबा राबा। Hallelujah, 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 hallelujah. Rabba Rashandhana Baraba Laba. Hallelujah. So question is this, कि कलीसिया क्या है? आप कलीसिया को क्या समझते हैं? जब आप कलीसिया वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है कि कलीसिया क्या है? Hallelujah. Thank you Lord Jesus. When you hear the word church, what comes in your mind? क्या आपके माइंड में आता है? हालेलुया। रबा रशंताना बराबा रेगा रथे नशंताना बराबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्रभु के नाम की महिमा हो। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यहां पर आंसर आने शुरू हो चुके हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया। रामानशन, सब एक होके प्रभु में विश्वास करें। कलीसिया, दीप्ति बोआज जो है वो आंसर दे रहे हैं। वरिंदर सहोत्रा जी ने आंसर दिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट, सब एक होके प्रभु में विश्वास करें। यस हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। यस, बिलीवर्स। हालेलुया। रबा रशंताना बराबा रेगा रथे नशंताना बराबा लबा। हालेलुया। यहाँ पर किसने उत्तर दिया? चुने हुए लोग, सेवक मसीह, चुने हुए लोग। हालेलुया। रबा रशंताना बराबा। हालेलुया। चर्च इज अ प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। यहाँ हमारी आत्मा ग्रो होती है। हरजीत कौर,
हालेलुया रबा रशन, जहाँ 2 और 3 मिलके प्रभु की महिमा करते हैं वो है कलीसिया। हालेलुया। 2 or 3 get together are called church. Oh, same answer, Poonam and Lifa Prera, you get the same answer and same time. हालेलुया, धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद खुदावंद। सो इट्स रियली ब्लेस्ड आंसर। और भी अगर कोई ज्यादा लोग है ना से होने से प्रेयर पहुंचती है। इज इट ट्रू कि ज्यादा लोग होने से प्रेयर जो है पहुंचती है आपकी? जो कम लोग होंगे तो फिर हालेलुया राबा रशांताना बारा बालाबा, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु का। हालेलुया। जो लोग आंसर दे रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। और डेफिनेटली आप में से किसी ने आंसर दे दिया है, लेकिन मैं जस्ट आपके जो आंसर है वो रिसीव कर रहा हूं। हालेलुया राबा रशांताना बा। कलीसिया क्या है? आप कलीसिया जाते हैं और आपको सबसे पहला जो वर्ड आपके माइंड में आता है वो है कलीसिया। आप चर्च में जा रहे हैं, आप कलीसिया में जा रहे हैं। सो आप जब कलीसिया में जाते हैं तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड चर्च। आपको चर्च वर्ड को समझना है। हालेलुया। मंडली, सहभागी। हालेलुया। सो हम लोग जो है वो वचन लेंगे और आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं कलीसिया के बारे में। जो हमारे चर्च के मेंबर हैं वो जो मैं सिखाने के लिए जा रहा हूं, हो सकता है जानते हो उसमें थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा नहीं जानते होंगे क्योंकि कुछ भूल भी जाते हैं। हालेलुया। सेवक मसीह हमारे चर्च के मेंबर हैं और विक्रमजीत जो है वो कंटिन्यू चर्च के मेंबर हैं और एक दो और भी बीच में हैं जो हमारे चर्च के मेंबर हैं। सो हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सो आज आप बहुत ब्लेस्ड होने वाले हैं, बहुत ब्लेस्ड होने वाले हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू हियर द मोस्ट वंडरफुल सर्मन। हालेलुया। प्रेयर आत्मा और सच्चाई से की जाए तो वो होली स्पिरिट गॉड तक डिलीवर करता है। यस, इट्स ट्रू। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है वो डिलीवर करता है हमारी प्रार्थना को। हालेलुया। जोनी सिंह जी, जेएमसी की, गॉड ब्लेस यू, यूर फर्स्ट टाइम इन द चर्च, इट्स बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। सो सुने, हम लोग ज्यादा टाइम यहां पर आपके आंसर्स में नहीं लगाते हैं। सो कलीसिया दो शब्दों से मिलकर के बना है। हालेलुया। सो यीशु मसीह के पास बुलाए गए हुए लोग, मीन्स के चुने हुए लोग, जहां अलग किए हुए लोग, जहां बुलाए गए लोग, जहां परमेश्वर की कुछ पर्पस के लिए अलग किए हुए लोग। हालेलुया। सो कलीसिया क्या है कि परमेश्वर के किसी पर्पस के लिए अलग किए हुए लोग। सो बुलाए हुए लोग, वी कैन से, आपने जितने भी आंसर दिए, सो दैट वाज वेरी वेरी ट्रू कि चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग, एक मंडली, एक सभा। हालेलुया। एक झुंड जो डेफिनेटली अलग किया हुआ है। हालेलुया। अलग किया हुआ है। परमेश्वर ने बुलाया उनको कीच से निकाला, उनको कीचड़ से निकाल करके एक जगह पर खड़ा किया। जब हम एक वर्ड सुनते हैं कि यीशु मसीह जा रहा है और वो वहां पर यरूशलेम को तैयार करेगा, एक घर को तैयार करेगा और फिर आएगा और अपनी कलीसिया को साथ में लेके जाएगा। हालेलुया। और वो उन पत्थरों से जो है वो घर तैयार कर रहा है जो कीचड़ में पड़े हुए थे, यानी हम लोग। हालेलुया। हमको कीचड़ से निकाल करके एक चट्टान पर खड़ा करना, वो एक कलीसिया है। हालेलुया। और कलीसिया जो है वो इमारतों से उसका कोई लेना देना नहीं। आज हम जो लाइव चर्च में बैठे हुए, वी हैव रिटन लाइव चर्च। हालेलुया। सो कलीसिया जो है वो लोगों से बनती है, ना कि साउंड एंड ऑल जो मटेरियलिस्टिक होता है, वो कलीसिया नहीं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को ईंटों से और परमेश्वर को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि उसमें लोग हो और वो सेवा करने वाले लोग हो और वो चुने हुए लोग हो और वो अलग किए हुए लोग। हालेलुया। सो आइए हम लोग जल्दी से वचन में जाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे मैथ्यू। आप अच्छे से सुनना आज वचन को, जितने भी लोग आप सुन रहे हैं प्लीज अच्छे से सुनना वचन को। और जो यहां पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, आप
एक बार सब जगह पर शेयर कर दीजिए। और अभी 22 हुए हैं, सो और भी लोग जो हैं वो सच्चाई को जाने, क्योंकि आज लोग चर्च बोलते हैं ना, हम चर्च हैं, हम कलीसिया हैं, लेकिन एग्जैक्टली लोगों को चर्च का पता नहीं। हालेलुया। कुछ वेद जो प्रभु यीशु मसीह ने शेयर किए, जो परमेश्वर ने बताए, वो लोग नहीं जानते हैं, वो लोग उनसे दूर हैं, वाकिफ नहीं हैं, और एग्जैक्टली जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। और जब वो अंडरस्टैंड करेंगे तो और भी ज्यादा प्यार करेंगे परमेश्वर से। आमीन। रॉबिन जी जेम्स की वेलकम, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे। और हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 16। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 उसका 18 वचन, ठीक है, उसका 16 और 18 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 और उसका 18 वचन हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। और अपने आप को कलीसिया कहने वाले लोग, जो हर एक जन आज अभी संगत में गए हैं, आज अभी संगत में जुड़े हैं, और अपने आप को कलीसिया कहने वाले, जस्ट समझेंगे कलीसिया क्या है। हालेलुया। अगर आप समझ गए कलीसिया क्या है, तब आप अपने आप को कलीसिया बोलेंगे ना, तो उसमें कुछ अलग ही मजा होगा, उसमें कुछ अलग ही आनंद होगा। हालेलुया। सो आइए जाएंगे, हम लोग बाइबल में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 उसका 18 वचन। Here you go. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of the Hades will not overcome it. I'll give you a keys of kingdom of heaven. Whatever you bind on the earth will be bound in heaven. हालेलुया। सो यहां पर लिखा है कि मैं भी तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। यीशु मसीह के जितने भी चेले थे, यीशु मसीह ने अपने पास बुलाए, और उनको यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। इस बात को आपने अच्छे से समझना है, ठीक है, अपनी लाइफ में लेना है इस बात को। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, व्हाट पीपल से अबाउट मी, व्हाट पीपल से अबाउट मी, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। हालेलुया। सो उन्होंने रिप्लाई किया कि कुछ लोग बोलते हैं कि तू नबियों में से नबी है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो यूहन्ना मर गया था वो जीवित हो गया है, और कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर का भेजा हुआ। अलग अलग व्यू सब लोग दे रहे हैं। और यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि लोगों को अभी छोड़ दो, अभी आप बताओ कि आप क्या सोचते हो मेरे बारे में। हालेलुया। दिस वन यू मस्ट अंडरस्टैंड। इस बात को आपने अच्छे से समझना है। लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में। जब यीशु मसीह ने पूछा कि लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में, तो एग्जैक्ट उसके बाद यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, व्हाट यू थिंक अबाउट मी। आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। लोग क्या सोचते हैं, दिस डजंट मैटर, लेकिन आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। आमीन। इस बात को आपने अच्छे से, हालेलुया, रबा रशंदाना बराबा लबा। ओके, सुने, हालेलुया। सो पतरस ने क्या रिप्लाई किया कि तू परमेश्वर का पुत्र है, यू आर सन ऑफ गॉड। हालेलुया। तू परमेश्वर का भेजा हुआ, परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह ने कहा उनसे कि ये बात तुझे लहू और मांस ने नहीं बताई, बल्कि ये बात तुझे स्वर्ग से, स्वर्ग के परमेश्वर ने, यानी मेरे पिता ने ये बात तुझ पर जाहिर करी है। हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है। अभी सुने, हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है। हियर इज द मेन की। मैं तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। यू नो, वहां पर 3 पत्थर थे। अभी आप गौर से समझना इस बात को। हालेलुया। मैं समझ लो कि आप सब वचन समझने वाले हैं, और आज अच्छे से आप समझ के जाने वाले हैं वचन को। हालेलुया। सो वहां पर 3 पत्थर थे, ठीक है जी, वहां पर 3 पत्थर थे। जब यीशु मसीह पतरस बात कर रहे थे, वहां पर 3 पत्थर थे। हालेलुया। एक यीशु मसीह खुद, ठीक है जी, एक यीशु मसीह खुद, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ही इज द कॉर्नरस्टोन। हालेलुया। वो कोने के
सिरे का पत्थर है। ही इज द कॉर्नरस्टोन, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया ही इज द कॉर्नरस्टोन। सो एक वो पत्थर वहां पर था, और दूसरा पतरस का नाम जो था वो कैफास था, और कैफास का मतलब है पत्थर। हालेलुया। सो पतरस का नाम है कैफास, सो कैफास का मतलब है पत्थर। सो दो पत्थर यहां पर, एक यीशु मसीह के बारे में बोला गया और दूसरा पतरस के बारे में बोला गया, और एक और पत्थर वहां पर था, तीसरा। हालेलुया। सुने, और तीसरा पत्थर क्या था जो पतरस ने बोला था? हालेलुया। तीसरा पत्थर क्या था जो पतरस ने बोला था? और पतरस ने क्या बोला था? कि तू जीवित परमेश्वर का बेटा है, तू जीवित परमेश्वर का बेटा है। यू नो दिस वन इज द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग हियर। यहां पर ये बात जो है वो सबसे ज्यादा अहम है और सबसे ज्यादा समझने के योग्य है कि तीसरा पत्थर वहां पर यह था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हर एक जन इस बात को समझ नहीं पाता है, हर एक जन इस बात को ऐसे नहीं ले पाता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि बाप बेटा पवित्र आत्मा नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। कुछ लोग बोलते हैं कि बाप बेटा पवित्र आत्मा नहीं है, सिर्फ पिता ही है और कुछ नहीं है ना। अलग अलग व्यूज है, लेकिन यहां पर जो एग्जैक्ट कलीसिया कहां पर बनती है? दिस इज द स्टोन। इस पत्थर पर जब आप समझते हैं कि यीशु मसीह कौन है, जब आप समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, यू नो आज अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे, अगर आप अच्छे से समझेंगे, तो लोग आज यीशु मसीह को बाबा बना दिया है। लोग आज यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र जो है वो बाद में लेकिन बाबा बना दिया है। हालेलुया। शादी नहीं हो रही, यीशु मसीह के पास चले जाओ। घर नहीं बन रहा, यीशु मसीह के पास चले जाओ। हालेलुया। बीमारी चंगी नहीं हो रही, यीशु मसीह के पास चले जाओ। हालेलुया। और कुछ नहीं लेने जाते, यीशु मसीह को ग्रहण करना है, समय नहीं। हालेलुया। मैं आज एक पिक्चर देख रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने सोचा कि लाइव चर्च के साथ शेयर करूंगा। सो दैट वाज वेरी नाइस पिक्चर। एक पिक्चर में था कि एक बंदा ऐश प्रस्ती कर रहा है। हालेलुया। जब पैसा पास है आपके, जब आपके पैसा पास है, तब यीशु मसीह आपको नजर नहीं आएगा। सुने, अच्छे से समझे इस बात को। जब पैसा पास है, यीशु मसीह नजर नहीं आएगा। तब आप बोलेंगे कौन है यीशु मसीह? वी डू नॉट नीड। हालेलुया। जब आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपके पास है, आप यीशु मसीह की आपको जरूरत नहीं है, तब नहीं आप समझोगे, तब नहीं आपको आप लेंगे। आपको पास्टर बोलेगा ना कि यीशु मसीह को स्वीकार करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पीछे करो। Hallelujah. You will reject Jesus and you will choose boyfriend and girlfriend. Hallelujah. Little hard, but you must understand this. Hallelujah. और जब आपके पास गाड़ियां, आपके पास ये सब कुछ है, तो आपको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। और जब आप हॉस्पिटल में पड़े, जब आप बीमार पड़े, तब एक कंप्लेंट आती है आपके मुंह से कि क्यों नहीं प्रार्थना मेरी सुन रहा है खुदा, क्यों नहीं वो मेरी सुन रहा है। अंडरस्टैंड? हालेलुया। जब आपके पास सब कुछ है, आपको यीशु मसीह नहीं चाहिए, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं है, तब आप भागते हैं, तब आप कंप्लेंट करते हैं। हालेलुया। कि यीशु मसीह मेरी क्यों नहीं सुन रहा है। जब तू ऐस परिस्थिति में था, क्या तूने सुना यीशु मसीह को? क्या तूने उसकी आवाज को पहचाना? जब पास्टर तुझे बोल रहे थे कि पश्चाताप कर, अपनी लाइफ में वापस आ जा, क्या तूने सुना? नो। हालेलुया। सो इस बात को सबसे पहले यीशु मसीह को समझना। जब आप चर्च में जाने की शुरुआत करते हैं, जब आप चर्च का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, जब आप चर्च का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। वो भिखारी नहीं है कि आपसे भीख मांगने के लिए आया कि मेरी आराधना करो। हालेलुया। वो आपसे चिल्लर नहीं चाहता है कि आपका फ्री टाइम आप परमेश्वर को दें। हालेलुया। ही इज द मोस्ट ऑनरेबल। हालेलुया। सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है, हर एक चीज को क्रिएट करने वाला परमेश्वर। जो आप देखते हैं, जो आप नहीं देखते हैं, ही इज क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। आपको, मुझे, हर एक चीज को बनाने वाला परमेश्वर।
रेमाना शंधाना कारा थे। हालेलुया। उसने उसने यीशु मसीह ने कहा कि ये बात तुझ पर परमेश्वर ने याद करी है और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। इस पत्थर पर मींस कि जो लोग समझेंगे कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। आज वो कलीसिया नहीं है जो यीशु मसीह को बाबा समझते हैं। हालेलुया। मैं साफ और डिक्लेयर और क्लियर बोलना चाहता हूं, आज वो कलीसिया नहीं है जो यीशु मसीह को सिर्फ बाबा समझते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स को खुदावन दूर करेंगे, आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे। आई एग्री विद दैट, बट सिर्फ और सिर्फ आपकी मुश्किलें दूर करें, दैट आई डू नॉट एग्री। इसके साथ मैं एग्री नहीं। हालेलुया। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मुश्किलों को दूर करने के लिए नहीं आए, बल्कि वो आपको जीवन देने के लिए आए, जिसके लिए हम इनकार करते हैं। हालेलुया। राबा रशंदनबा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। और यहां पर सुने अच्छे से सुने आप। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन सा पत्थर? 3 पत्थर मैंने बताए वहां पर। एक यीशु मसीह खुद, और दूसरा जो पत्थर था वो पथरस, जिसके नाम का मतलब पत्थर था। कैफास का मतलब पत्थर। हालेलुया। और तीसरा जो है वो जो पतरस ने बोला था, हालेलुया। सो 3 पत्थर थे वहां पर। अंडरस्टैंड? सो सुने, अब और आगे बढ़ेंगे। और वहां पर यीशु मसीह ने कहा, आई टेल यू, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of the Hades will not overcome it. Hallelujah. और सुनिए, यहां पर लिखा गया है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं कलीसिया बनूंगा। सुनिए, यहां पर 5 वर्ड्स हैं, ठीक है जी। यहां पर 5 वर्ड्स हैं, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। यहां पर 5 वर्ड्स हैं। हालेलुया। 5 शब्द यीशु मसीह ने बोले, मैं। ठीक है जी, आप लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन। और आपको ये 5 वर्ड जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है जी। पहला वर्ड है मैं, मींस आई। दूसरा वर्ड है इस पत्थर। हालेलुया। सो दूसरा वर्ड है पत्थर। तीसरा वर्ड है कलीसिया। चौथा वर्ड है अपनी, और 5वां है बनाऊंगा। ठीक है जी। इन 5 वर्ड्स को अभी हम समझेंगे, ठीक है जी। कितनों को अच्छा लग रहा है और कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। धन्यवाद खुदा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कितनों को अच्छा लग रहा है, कितनों को समझ में आ रहा है? अच्छा लगना एक अलग बात है और समझ लगना एक अलग बात है। हालेलुया। अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी निकल जाता है माइंड से, लेकिन समझ में आना चाहिए। हालेलुया। यहां पर 5 वर्ड्स हैं, ठीक है जी। 5 वर्ड्स हैं मैं, ठीक है जी। सबसे पहला वर्ड मैं। हालेलुया। दूसरा वर्ड पत्थर, ठीक है जी। तीसरा वर्ड कलीसिया, और चौथा वर्ड अपनी, और 5वां वर्ड बनाऊंगा, ठीक है जी। सो यहां पर हम 5 वर्ड्स को जो है वो जस्ट एक्सप्लेन करेंगे, और एक वर्ड हम लोग बताएंगे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और सभी वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट है। मैं जो वर्ड है वो यीशु मसीह बोलता है मैं कलीसिया बनाऊंगा। अंडरस्टैंड? हम पास्टर लोग जो हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, डे नाइट हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कलीसिया कौन बोलता है कि बनाऊंगा? कलीसिया बोलता है कि मैं बनाऊंगा। हालेलुया। हम लोग ट्रस्टिंग अदर पीपल कि ये मेरी हेल्प करेगा, वो मेरी हेल्प करेगा, ये मेरी हेल्प करेगा, लेकिन बाद में सब लोग धोखा देते हैं, बाद में सब लोग चीट करते हैं। एक हमारे बीच में एक पास्टर थे, रवि पास्टर थे, हमारे बीच में लाइव आया करते थे, अभी नहीं आ रहे कुछ समय से, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट किया दूसरों के ऊपर। हालेलुया। कोई नहीं कलीसिया बनाएगा, कोई पास्टर नहीं कलीसिया बनाएगा, मैं। हालेलुया। और दूसरा जो वर्ड है वो है पत्थर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पत्थर। वो जो सेइंग जो पतरस ने बोला था, हालेलुया, उस पत्थर पर अगर आज हम पतरस के ऊपर बोले
तो कुछ लोगों को जो है वो मिलता है कि हाँ, हमारे सेंट के ऊपर, हमारे संत के ऊपर यीशु मसीह ने बोला था कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। वहां पर 3 पत्थर थे और तीसरा पत्थर जो मैंने आपको बताया वो था सेइंग ऑफ द पीटर। हालेलुया। और सुने, हालेलुया, पहला वर्ड है मैं, और दूसरा वर्ड है पत्थर, और तीसरा वर्ड है कलीसिया जो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है जी, तीसरा वर्ड है कलीसिया। सो मैं पत्थर पर कलीसिया, और चौथा वर्ड है अपनी। ठीक है जी, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और 5वां वर्ड है बनाऊंगा। ठीक है जी। सो दिस 5 वर्ड में से अगर आपको मैं बोलूं कि आपको कौन सा वर्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फील होता है, कि पांचों वर्ड जो है वो जरूरी है, लेकिन इनमें से एक वर्ड जो है वो रियली इफेक्टिव वर्ड, और वो आपकी नजर में कौन सा आता है? मैं समझना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग समझ रहे हैं। मैं, पत्थर, कलीसिया, अपनी, 5वां वर्ड बनाऊंगा। ठीक है। सो आप किस वर्ड को चूज करते हैं अगर आपको चूज करना हो? हालेलुया, राबा राशंताना बारा बाला। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से waiting your answers. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. मैं, Jesus, सिस्टर पूनम मैं, और जेनिफर कलीसिया, हरजीत कौर अपनी। वाओ, 3 वर्ड्स। हालेलुया, राबा रशंथेना करथेना शंताना बारा बालाबा। हालेलुया, रीमा मामा ना शंदाना करथेना शंदेना बा। जोगिता अपनी। हालेलुया, कृपाली स्टोन, पत्थर। हालेलुया, जोत कश्यप कलीसिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रीमा बाबा राशन दीप्ति बोआज कलीसिया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सुमन गिल कलीसिया, मनोज कुमार कलीसिया, सरोजा जी कलीसिया। Most of the people are saying कलीसिया। I am stone, a church। 3 वर्ड्स आपने बोले सिस्टर लिफा, मी, स्टोन एंड कलीसिया। विक्रम जी सिंह, मैं, मी। हालेलुया, रे बारा बारा शंदेना बारा बारे गारथेना शंताना बारा बा। ज्यादातर लोग जो है वो वर्ड को फोकस कर रहे हैं कलीसिया। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस, कलीसिया। मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ, अच्छे से आप समझेंगे। ठीक है, आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। आई एम स्टोन एंड मी एंड कलीसिया। ओह हालेलुया, रे बारा शंताना बारा बारे गारथेना शंताना। ओके फाइन, सुने अच्छे से सुने। अब मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक राजा था जिसका नाम अशोका था, शायद आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, जिसका नाम अशोका था। और उसने जो था, उसने अपनी लाइफ में निर्णय लिया कि मैंने पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है। ठीक है, उसने अपनी लाइफ में निर्णय लिया कि मुझे सारी दुनिया के ऊपर राज करना है। और एक एक करके, स्लो करके, आई थिंक अलेक्जेंडर था, और आई थिंक अलेक्जेंडर। सो उसने अपने माइंड में सोचा कि मुझे पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो राज करना है, और एक एक राज्य को करके वो कब्जे में लेता गया, और पूरा दुनिया के ऊपर उसने राज जो था, अपना एजेंडा जो था वो खड़ा कर दिया। पूरी दुनिया के ऊपर जो राज था उसको फैला दिया। ठीक है, और अभी उसके पास एक घोड़ा था जो उसका, आई से दैट, उसका फेवरेट, और जो हर फाइट में उसके साथ था। और जब उसको पूरी दुनिया के ऊपर उसने फतेह ले ली, पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो उसने क्या किया, उस घोड़े को उसने बोला कि इट इज लकी फॉर मी, सो मैं इसके गले में एक पट्टा डालूंगा, इसके गले में एक लिखूंगा, और बड़े से एक बैनर डाल दूंगा इसके गले में कि ये राजा अलेक्जेंडर का घोड़ा, ये राजा अलेक्जेंडर का घोड़ा है। सो उसने उसके गले में वो बैनर डालकर उसको छोड़ दिया कि राजा अलेक्जेंडर का जो घोड़ा है
ठीक है जी। तो जैसे ही उसने छोड़ दिया तो कोई भी जन जो है वो उस घोड़े को पकड़ नहीं पाता था, कोई भी जन, क्योंकि उसके गले में जो बैनर था उसकी वजह से कि ये राजा अलेक्जेंडर का और पूरी दुनिया किसकी है, उस राजे की, पूरी दुनिया उस राजे की है। इसलिए इसके ऊपर कोई वो किसी का घास खा जाए, किसी के घर में घुस जाए, या किसी के कोई भी जन, किसी की हिम्मत नहीं थी उसको रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि वो राजा का था, हालेलुया, और राजा की दुनिया थी सारी, अंडरस्टैंड, हालेलुया। सो यहां पर अभी हम वापस आएंगे कि वो घोड़ा जो है वो आप कलीसिया को रखे, हालेलुया, और वो जो राजा है वो आप खुदावंद को रखिए, हालेलुया। और वो क्यों एक आजाद था, क्यों वो अहम था घोड़ा, क्योंकि वो राजा का था, हालेलुया। सो मेन वर्ड वहां पर वो 5 वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं उनमें अपनी, अपना वर्ड, मैं, इस रियली इज इंपॉर्टेंट, पत्थर इज इंपॉर्टेंट, कलीसिया इंपॉर्टेंट, अपनी इंपॉर्टेंट, और बनाऊंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सुने गौर से, अब मैं फोकस कर रहा हूं अपनी, कि जो कलीसिया है वो किसकी, हालेलुया, दुल्हन किसकी, आप सुने गौर से, दुल्हन किसकी है, खुदावन की, परमेश्वर की, हालेलुया। होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ रहे हैं मेरी बात, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। कुछ लोगों के लिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जो नए लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे से गेट कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छे से ले रहे हैं इस वचन को, हालेलुया। सो अपनी वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, यू नो, मैं आपको बताता हूं कि अपनी वर्ड, क्योंकि कलीसिया जो है ना, आज जो है वो पास्टर बैठे हुए हैं कलीसियाओं के ऊपर। सुने इस बात को अच्छे से सुनिए आप, हालेलुया, राबा राशन देना बाराबा। आज कलीसियाओं के ऊपर जो है कौन है, पास्टर लोग। किसकी कलीसिया, मेरी 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 कलीसिया, हालेलुया। आज कौन क्या बोल रहे हैं, अपनी कलीसिया बोल रहे हैं, हर एक जन क्या बोल रहा है, मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया में एंटर नहीं करना, मेरी कलीसिया में एंटर नहीं करना। एक बार किसी पास्टर के एक फैमिली हमारे चर्च में आ गई, ठीक है। मैंने उनको बोला कि आप उस चर्च के मेन मेंबर हो, आपके घर में आराधना होती है तो आपको यहां पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके घर में आराधना होती है, तो अगर आप यहां पर आ रहे हैं तो उस पास्टर के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि पास्टर जी आप कुछ भी बोलो, हम इधर ही बैठेंगे, आपकी कलीसिया में बैठेंगे हम लोग। तो मैं वहां पर जो था वो एकदम से हेल्पलेस था कि क्या बोलता उनको। तो वो उन्होंने आराधना अटेंड करी और नेक्स्ट डे उस पास्टर ने मुझे फोन कर दिया, बोले आप मेरी कलीसिया ले गए। मैंने बोला पास्टर जी सबसे पहले तो आप ये बोलना बंद करें कि मेरी कलीसिया, कलीसिया तो किसी की भी नहीं है, ये मेरी भी नहीं है और आपकी भी नहीं है, कलीसिया यीशु मसीह की। फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वन, कि आपकी कलीसिया नहीं है, खुदावन की कलीसिया है। और अगर आपको शक है कि मैंने आपकी कलीसिया चोरी कर ली है, तो आप क्या करें, आप मेरे कलीसिया में आए और जितने विश्वासी आपके साथ जाते हैं ना, 10 जाते हैं, 20 जाते हैं, जितने भी जाते हैं, आप ले जाओ अपने साथ। आई विल नॉट से टू एनीथिंग, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा, कुछ भी होता है आपसे कर लो, हालेलुया। तो जो कंसेप्ट है ना, जो रियली कंसेप्ट है, वो आज ये बना हुआ कि मेरी कलीसिया। मैं एक बात आपको बताता हूं, जो भी पास्टर ये वर्ड बोलता है ना कि मेरी कलीसिया है, वो पास्टर परमेश्वर की ओर से नहीं है, हालेलुया। वो पास्टर परमेश्वर की ओर से नहीं है। किस पर नजर रख रहा है, खुदावंत की दुल्हन पर नजर रख रहा है ना, हालेलुया। खुदावंत की दुल्हन के ऊपर नजर रख रहा है। ये दुल्हन किसकी है, कलीसिया किसकी है, कौन बना रहा है, हालेलुया। किसने लहू बहाया, आज किस पास्टर ने कलीसिया के लिए लहू बहाया, किसने अपने हाथों पर कीलें ठुकवाई, नो वन, हालेलुया। मैं बताता होता हूं कि आज पास्टर लोग बोलते हैं कि मुझे पापा बोले। अभी एक और बात मैं आपको बताता हूं कि पास्टर कौन से पखंड कर रहे हैं, सुने अच्छे से। बहुत सी चीजें जो है वो ऐसे निकल के आ जाती हैं बाहर में, यू नो। एक मीटिंग अटेंड करी हमारे एक विश्वासी ने, और वो बता रहे थे कि मैं वहां पर चेक कर रहा था कि क्या हो रहा है वहां पर, सब कुछ कैसे हो रहा है।
यू नो पास्टर वहां से चले गए, मीटिंग खत्म करने के बाद पास्टर जी वहां पर चले गए, और जो मूर्ख वॉलंटियर्स है, जो मूर्ख कलीसिया है, वो क्या कर रही है सुने, वो जहां पर पास्टर जी खड़े थे ना, वो उनको जो है वो उस जगह के आगे दंडवत कर रहे हैं, ऐसे करके उस जगह के आगे दंडवत कर रहे हैं। यू नो ये फुलिशनेस जो है वो भी आगे निकल गए, पागलपन से भी आगे निकल गए। यही बात है कि कलीसिया जो है वो खुदावन की होनी चाहिए। हम कलीसिया में ड्यूटी कर रहे हैं, ओनली ऑन ड्यूटी, नथिंग एल्स। हम ऑनर नहीं है कलीसिया के, एक पास्टर ऑनर नहीं है कलीसिया का। हालेलुया। पास्टर एक सेवादार है, पास्टर एक सेवा कर रहा है, जस्ट ओनली सर्विंग इन कलीसिया। हालेलुया। कलीसिया खुदावन की दुल्हन है। रीमाना शंदेना बाराबाला। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं आज? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। अपनी कलीसिया। एक और एग्जांपल सुनिए। हमारे यहां पर एक कैनल है, हमारे जस्ट घर के पास ही, इस चर्च के पास ही जस्ट बहती है, कैनल है, बहुत बड़ी। सो वहां पर जो है वो पेड़ जो होते हैं ना, उन पर नंबर लिखे हुए हैं, जो सरकार ने काउंटिंग करी है उन पर नंबर लिखे रहते हैं। और जुनू एक पेड़ सूख जाए, एक पेड़ को कुछ भी हो जाए, कैसे भी पड़ा रहे, लेकिन उस पर अगर नंबर लिखा गया है ना, तो उसको कोई भी जन उठा के चोरी नहीं कर सकता, उसको कोई भी जन काट नहीं सकता। अगर आप किसी जो काटते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कारपेंटर्स जो काटते हैं उसको, अगर एक नंबर लिखी हुई लकड़ को आप वहां पर लेके जाओगे ना, लकड़ी को, तो वो जो है वो काटेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि इस पर नंबर लिखा हुआ है। वी आर द चर्च ऑफ गॉड। हालेलुया। और मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सुने गौर से, आप खुदावन के चुने हुए लोग हैं, उसके अलग किए हुए लोग हैं। यू आर द चर्च। अगर आप एक अलग जिंदगी बसर कर रहे हैं तो, हालेलुया, अगर आप अलग जिंदगी बसर कर रहे हैं तो सुने अच्छे से, इस बात को सुने, आपके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, आप सरकारी, जैसे व्हाट वी से, आप परमेश्वर की तरफ से हैं, आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है, और कोई भी जन आपको छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप उसके हैं। यू आर फ्रॉम गॉड। अगर आप किसी पास्टर के हैं तो पास्टर तो हो सकता है रात को सो जाए, लेकिन खुदावन ने क्या कहा? समझ में आ रही मेरी बात? हालेलुया। पास्टर तो हो सकता है कि रात को सो जाए और आपका फोन अटेंड ना करे, पास्टर तो हो सकता है कि रात को सो जाए और आप बुलाएं और वो आपके पास ना आए, लेकिन खुदावन ने क्या कहा कि तेरा रखवाला, तेरी रक्षा करने वाला, हालेलुया, वो कभी नहीं सोता। आमीन। हालेलुया। सो यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना रहे हैं। क्यों? देखो, मैं कभी कभी एक और भी बात बताता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। यीशु मसीह और परमेश्वर आदम के साथ कितने समय बताते थे, हर रोज उसके पास आते थे, लेकिन कलीसिया का भेद उसके साथ शेयर नहीं किया। अब्राहम के साथ कितनी बात करते थे, उसके साथ नहीं शेयर किया। मूसा के साथ परमेश्वर जो है वो आमने सामने बात कर रहे हैं, जस्ट फेस टू फेस। अंडरस्टैंड? मैं कभी कभी मोसेस के बारे में सोचता हूँ, ही इज रियली रियली वेरी ब्लेस्ड कि खुदावंद उसके आमने सामने बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कलीसिया का भेद है उसको नहीं बताया। दाऊद को परमेश्वर ने बोला कि ही इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, लेकिन उसको भी परमेश्वर ने जो है वो नहीं बताया। और पतरस के ऊपर जो सिर्फ यहां पर शेयर किया, इतना सही कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, इतना सही शेयर किया, और बाकी जितना भी भेद है वो पौलुस के साथ शेयर किया। मैं आपको बताऊंगा शायद कल या मंडे को हम लोग क्लास लेंगे कलीसिया के ऊपर, ठीक है जी। आज तो समय जो वो निकल रहा है, और आज मैं जस्ट कुछ बातें आपको और भी बताऊंगा जो खुदावंद मुझे बता रहे हैं। हालेलुया। सो इतना सा भेद जो है इसके साथ शेयर किया, और
जब आप पौलुस को देखते हैं, उसके साथ पूरा का पूरा खुदा ने वेद खोला। क्यों? आप जब पौलुस को देखेंगे तो वो डिफरेंट है। मैं एक बात बताने वाला था आपको कि आज जो पास्टर लोग हैं ना, वो कलीसिया के ऊपर बैठे हुए हैं कि मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया। हालेलुया। किसी पास्टर की कलीसिया नहीं, किसी भी पास्टर की कलीसिया नहीं। ये कलीसिया खुदावन की है, ये कलीसिया परमेश्वर की है। पास्टर सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं। हालेलुया। पास्टर सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हालेलुया। कलीसिया जो है वो है खुदावन की, वो है परमेश्वर की। हम रखवाले बैठे हुए हैं सिर्फ। हालेलुया। और आज पास्टर क्या बोलते हैं कि यू हैव टू से मी फादर, यू हैव टू से मी पापा। क्यों भाई? वाई शुड पीपल से यू फादर? क्यों? क्या किया तूने कलीसिया के लिए? जस्ट आप बोल रहे हैं कि मुझे फादर बोलो। क्या किया तूने कलीसिया के लिए? जान दी, किले ठगवाई, यहां पर भाला खाया, कोड़रे खाए, कूड़े खाए क्या? आज मैं पिछली बार भी आपको बता रहा था, आज अगर कोई पास्टर हमको बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि मुझे फादर बोले, उसको बोलने कि यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए थे और पौलुस ने 195 खाए थे, और आप 10 खा लो, हम आपको फादर बोल देंगे। हालेलुया। आप 10 खा लो, सिर्फ ज्यादा नहीं खाओ, सिर्फ 10 खा लो। हालेलुया। फिर आप समझना कि वो पास्टर आपको वो फिर बोलेंगे कि मुझे पास्टर भी चाहे ना बोलो, लेकिन चर्च में आए दो बस। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? आपका पृथ्वी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फादर है, वो है परमेश्वर आपका। हालेलुया। यू शुड नॉट से एनीवन टू पापा। मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको बोल सकता हूं कि आप मुझे पापा बोले, लेकिन मैं कभी बाइबल के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैं कभी बाइबल के विरुद्ध कभी भी खड़ा नहीं हो जाऊंगा। हालेलुया। कुछ भी बजाओ, लेकिन बाइबल में सीख देखो, हमारा परमेश्वर पहले से जानता था कि ऐसे पास्टर उठेंगे जो कहेंगे कि मुझे डैडी बोलो, मुझे पापा बोलो, मुझे ये बोलो, मुझे वो बोलो। इसलिए पहले से ही उसने लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार में कि पृथ्वी पर किसी को पिता ना बोले। हालेलुया। और हम जो हैं वो अपने आप को कलीसिया बोलते हैं, लेकिन कलीसिया वर्ड का ही हमें पता, कलीसिया की गहराई का ही नहीं पता हमें। हालेलुया। कलीसिया एक चुने हुए लोग, और परमेश्वर जो है वो उनको नहीं चुनेगा जो मूर्ख हैं। आप बोलेंगे कि पौलुस बोलता था कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, और अगर आप पौलुस की लाइफ के बारे में देखेंगे तो क्या पौलुस मूर्ख था? क्या पौलुस मूर्ख था? जैसे हम लोग सोचते हैं कि एक पास्टर था, वो अनपढ़ था, और वो क्या बोलता था कि खुदावन ने कहा है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। तो मैं वहां पर एक क्वेश्चन खड़ा करता था वहां पर कि क्या पौलुस लिख रहा है वहां पर, और क्या पौलुस मूर्ख था? अपने जमाने का, अपने समय का सबसे पढ़ा लिखा बंदा जो पौलुस था। आप कभी पौलुस की बैकग्राउंड समझ के जाएं, पौलुस की बैकग्राउंड देखें। पौलुस अनपढ़ नहीं था। सबसे ज्यादा उसने चर्च के लिए किया, सबसे ज्यादा पौलुस ने चर्च के लिए किया। आज क्यों लोग पौलुस के गुण गाते हैं, क्यों लोग पौलुस के बारे में बोलते हैं, क्यों लोग पौलुस को जो है वो सबसे बड़ा रसूल बोलते हैं? क्यों? क्योंकि जो पौलुस ने किया कलीसिया के लिए वो कोई भी नहीं कर सकता, और किसी ने भी नहीं किया। हालेलुया। सबसे ज्यादा वेद कलीसिया के बारे में पौलुस ने दिया। सबसे ज्यादा लेटर जो बाइबल में है वो पौलुस के हैं। हालेलुया। सो पौलुस ने बड़ा ज्यादा एक देन दिया, बहुत बड़ा एक काम किया। हालेलुया। और आप जब हम कलीसिया के बारे में देखते हैं, कलीसिया के बारे में सुनते हैं, जब कलीसिया के बारे में बोलते हैं, या हम भी यही सिखाते हैं कि पापा नहीं बोले, किसी को नहीं बोले, पापा मूर्ख ना बने, पागल ना बने।
हालेलुया। पास्टर जी बोले क्या, मुझे मुझे कुछ कुछ दिक्कत नहीं है, आप अगर पास्टर जी बोलेंगे, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। हालेलुया। पापा बोलने से थोड़ी मैं कोई वाकई वो बन जाऊंगा, यू नो। खुदावन, एक जगह पर पौलुस ने लिखा है, बड़ा बड़ा प्यारा वचन लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कैफास का हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैं अपोलोस का हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैं पौलुस का हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैं यीशु मसीह का हूं। तो पौलुस एक क्वेश्चन पूछता है कि किसने तुम्हारे लिए क्या किया? क्या मैंने तुम्हारे लिए जान दी जब कैफास तुम्हारे लिए मरा, जहां उसने कोड़े खाए? हालेलुया। आज कलीसिया के ऊपर बुरी नजर रखने वाले पास्टर्स को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, बुरा हाल होगा। कलीसिया आपकी नहीं है, चर्च बिलोंग्स टू गॉड ओनली। और अपने अपने आप को परमेश्वर की जगह पर बिठाना बंद करें, कलीसिया को उल्लू बनाना बंद करें, कलीसिया को मूर्ख बनाना बंद करें। सही शिक्षा दें कलीसिया के बारे में, कलीसिया क्या है, चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग। मैं पौलुस के बारे में बता रहा था कि इज रियली पॉलुस फुलिश? क्यों बोलता है कि खुदावन ने मूर्खों को चुन लिया? क्यों बोलता है कि परमेश्वर ने मूर्ख लोगों को चुना? वो इसलिए बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में मूर्ख था जो कलीसिया को तंग कर रहा था। वो अनपढ़ था इसलिए मूर्ख नहीं था। हालेलुया। वो कभी स्कूल में नहीं गया इसलिए मूर्ख नहीं था, लेकिन वो इसलिए मूर्ख था कि वो कलीसिया को तंग कर रहा था। हालेलुया। और हम लोग उस वचन को कैसे कैसे मरोड़ रहे हैं उस वचन को। वो एक बात बोलते हैं पंजाबी में, कहावत बोलते हैं, बड़ी अच्छी लगती है कहावत पंजाबी में, कि ज्ञान जो होती है समझ, उसके गले में आज रस्सी डाली हुई है। हालेलुया। जैसे जे नेकटाइज है ना, ऐसे ज्ञान के गले में जो है वो रस्सी डाली हुई है। कोई इधर को पकड़ के लेके जा रहा है, कोई उधर को पकड़ के लेके जा रहा है। स्पिरिचुअल फादर और मदर का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों ये ऐसा हो गया। ये कुछ यू नो, दिस इज नॉट बैड थिंकिंग, ये एक बुरी थिंकिंग नहीं है, लेकिन अभी जो है वो गलत हो गया है। और जब शुरू हुआ, और ये जो है ये गलत नहीं था, क्योंकि अगर कलीसिया में एक बेटी है और वो पास्टर जी को पापा बुला रही है, तो मे बी 75% नेटवर्क प्रॉब्लम। हालेलुया। सो मोर देन 75% जो पीपल है उनके अंदर पाप जो है वो नहीं आएगा। बोल देंगे मैं पापा बोलता हूँ, वो बोलती हूँ। और आई थिंक यहाँ तक समथिंग। सो उसके उसके बाद जो पास्टर रहेगा उसके अंदर भी ज़्यादा नहीं आएगा ये कि मैं पाप अपने अंदर रखूं। लेकिन अभी जो है वो कंसेप्ट जो है वो बदल चुका है, अभी ये नहीं रह गया। हालेलुया। अभी आप देखेंगे ना कुछ पास्टर्स को, मैं नाम नहीं लूंगा, आप कुछ पास्टर को देखेंगे ना, तो उन्होंने लड़कियां रखी हुई अपने घर में, वो उनको पापा बोलती है, लेकिन रात में कुछ और होता है, दिन में वो पापा बोलती है। दिस इज रियली वेरी शेमफुल टू हियर इवन स्पीक और समथिंग। हालेलुया। सो पापा दिन में बोलना और रात में जो है वो सेम बिस्तर को शेयर करना। हालेलुया। सो सुने अच्छे से, इन बातों को समझे कि कलीसिया जो है वो क्यों चुनी गई। यहां पर एक बात हम लास्ट बोल के फिनिश करेंगे, और कल मंडे को हम लोग फिर से कलीसिया के मैटर पर जो है मैं आपको थोड़ा सा सिखाना चाहता हूं, क्योंकि जो है वो कलीसिया के बारे में लोग जो है वो एग्जैक्टली कम जानते हैं, बहुत कम जानते हैं।
हालेलुया। सुने अच्छे से, सिस्टर लिफा, आप वो बेड के रूप में बेटी है, या इट्स वेरी ट्रू। सिस्टर लिफा, आप सुन रही हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं नेटवर्क के यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक? जो फेसबुक पर सुन रहे हैं उनको वॉइस क्लियर है? यहाँ पर एक मैसेज आया कि नेटवर्क जो है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, सो प्लीज हालेलुया रबा रशंते नबा रबा लेखालते नशंता नबा रबा। बहुत जल्दी इसी साल में जो है वो हम एक अच्छा जो है वो नेटवर्क जो है वो देना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो थर्ड पार्टी ऐप से जो है वो हम लोग लाइव कर रहे हैं। सो उससे ज़्यादातर बेटर नहीं होता है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है वो हम लोग वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम लोग आने वाले दिनों में एक अच्छा लाइव जो है वो आपको दे पाएंगे। और यहाँ पर जो यूट्यूब के ऊपर है हम लोग कैमरा के साथ जो है वो लाइव दे पाएंगे इसी साल में। हम लोग कोशिश करेंगे कि, क्योंकि यहाँ पर लैपटॉप का जो कैमरा है, और दिस इज़ नॉट वेरी परफेक्ट कैमरा, आई फील दिस वेरी डल। और आने वाले दिनों में जो है वो प्रभु दया करेंगे और हम अच्छे कैमरा के साथ जो है वो लाइव आपको दे पाएंगे, और भी अच्छा जो है इफेक्ट आपकी लाइफ में जो है वो लाइव का होगा। हालेलुया। क्लियर वॉइस यहाँ पर फेसबुक पर बिल्कुल क्लियर वॉइस है। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सो यहाँ पर सुने एक बात अच्छे से, लास्ट बात को समझेंगे और उसके बाद हम फिनिश करेंगे, फिर हम लोग जो है कलीसिया के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा। सुने गौर से, यहां पर लिखा है कि जो बताल के फाटक, जो अधोलोक के फाटक है, उनका कलीसिया के ऊपर कोई जोर नहीं होगा। सो यहां पर आपको जो है वो एक गलत चीज जरूर सिखाई होगी, क्योंकि मुझे भी गलत चीज सिखाई थी जिस चर्च में हम जाते थे इसके बारे में। और यहां पर क्या क्या बोला गया था कि जो अधोलोक के फाटक है, मीन्स के अधोलोक की शक्तियां, मीन्स जो दुष्ट आत्माएं, आप पढ़ सकते हैं, दुष्ट आत्माएं जो अलग अलग लेवल की होती, यू नो, हम किसी दिन उसके बारे में गौर करेंगे। एफिशिएंस उसका 6 उसका 10 से आप देखेंगे तो बहुत अच्छा वहां पर वचन आपको मिल जाएगा। सो वी विल टेक इट सेपरेट। सो अलग अलग लेवल की दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों की लाइफ में जो है वो काम कर रही हैं। सो यहां पर हमको क्या सिखाया गया कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो कलीसिया के ऊपर अटैक करेंगे और उनका जो है वो जोर नहीं चलेगा। क्या आपको भी ऐसा सिखाया गया कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो कलीसिया के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे? आपको कैसे सिखाया गया इस बात को कि अधोलोक के फाटकों का कलीसिया के ऊपर कोई वश ना होगा, कलीसिया के ऊपर कोई कंट्रोल ना होगा? आपको कैसे सिखाया गया? आई डू नॉट नो। मुझे ऐसा सिखाया गया था, हमको चर्च में ऐसा सिखाया गया था कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो अटैक करेंगी, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्मा अटैक नहीं करेगी। वी हैव टू अटैक ऑन शैतान। ये एक अलग, एक डीप है थोड़ा सा, लेकिन वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। हमको इस बात को समझना है कि शैतान को अटैक नहीं करना है, वी हैव टू अटैक ऑन शैतान। यू नो, अटैक वो अटैक होता है जो कहीं से पकड़ के लेके आता है, जब चोरी करके लेके आता है, जब अपने कब्जे में करके लेके आता है। और व्हाट वी आर डूइंग, आप लोग कलीसिया और पास्टर लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग शैतान के लोगों को चुरा करके कलीसिया में जोड़ रहे हैं। यू नो, आप सब भी करते होंगे कि किसी किसी को जो है वो हालेलुया, किसी को आप जो कलीसिया में जोड़ते होंगे, और वो कहां से लेके आए आप? यू नो, आप अपने से कितने लोगों ने एक जन को जन 2 जन को जन 10 जन को जन 20 जन को कलीसिया के साथ जोड़ा है? कितने लोग हैं जिन्होंने कलीसिया के साथ जोड़ा है? अपने पास्टर के साथ मिलाया है किसी को, यू नो, अपने पास्टर के साथ मिलाया है किसी को। हालेलुया। सो सुने अच्छे से, हम क्या कर रहे हैं वहां पर? वी आर टेकिंग शैतान पीपल टू चर्च। और अटैक कौन कर रहा है? हम जब शैतान, समझ रहे हैं मेरी बात? वी आर अटैक। हालेलुया। हम लोग अटैक कर रहे हैं, हम लोग उसके बंदों को, शैतान के बंदों को
लेकर के चर्च में लेकर के आ रहे हैं। ही विल नॉट अटैक। वो तो अटैक हम लोग सोचते हैं हमें जुकाम हो गया। कभी कभी ना कुछ लोग बड़ा मजाक करते हैं, वैसे तो सीरियस बोलते हैं, लेकिन बड़े मजाकिया बात होती है कभी कभी। आई रियली फील कि पास्टर जी हम किसी को लेके आए थे तो शैतान ने हमें जुकाम लगा दिया। हालेलुया। वो ऐसे अटैक नहीं करेगा। जुकाम बुखार ये सब तो ऐसे ही चलते रहते हैं लाइफ में। कभी आ गया, कभी चला गया, कभी ऐसा हो गया, कभी ये हो गया, ये होता रहता है। इट्स नॉट, यू मे नॉट थिंक इट्स फ्रॉम शैतान। वो ऐसे नहीं अटैक, आपको जुकाम नहीं लगाएगा। हालेलुया। वो आपकी आत्मिक लाइफ को गिराना चाहता है। वो आपको जुकाम लगा के आपको कुछ उसको उसको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? हालेलुया। और आप वी आर अटैकिंग ऑन शैतान। हम इसके बारे में जो है वो अच्छे से सीखेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन अभी जो टाइम है वो ऑलमोस्ट ओवर। सो हम लोग मंडे को एक और क्लास लेंगे इस पर, सेम सेम मैटर। हालेलुया। कलीसिया, वी आर चर्च। शैतान हमसे डरना चाहिए, हम शैतान के ऊपर हैवी होने चाहिए। We have to attack on Satan. We have to take his people to the kingdom of heaven. Hallelujah. हमें शैतान के लोगों को निकाल करके परमेश्वर के राज्य में जमा करना। आमीन। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हम लोग और भी सीखेंगे कलीसिया के बारे में, और मैं आपको कुछ और अच्छे भेद जो है कलीसिया के बारे में बताऊंगा कि कलीसिया जो है वो कैसे काम कर रही है, कैसे काम कर सकती है। आमीन। हालेलुया। सो आज सिस्टर प्रतिभा का बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे फ्रॉम बेथेल चर्च मिनिस्ट्री एंड फ्रॉम अवर लाइव चर्च हॉल। सिस्टर प्रतिभा, गॉड ब्लेस यू। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, बेटी प्रतिभा को आपके पवित्र हाथों में देता हूँ। खुदाबंद यीशु के सामर्थ्य नाम एक और साल उनकी लाइफ में दिया, और विश्वास करता हूँ कि प्रभु आने वाले साल में बहुत ज़्यादा ब्लेस होने वाली है, और उनकी मन की ख्वाहिशें जो आप में बढ़ना चाहती है वो होने के लिए जा रही है। खुदा धन्यवाद करता हूँ। ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें यीशु के सामर्थ्य नाम। आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने बर्थडेज और आपकी एनिवर्सरीज एंड ऑल आप शेयर करते हैं मेरे साथ, तो वी आर डेफिनेटली प्रेइंग फॉर यू। हालेलुया। हम सारी कलीसिया एक साथ हैं, और वी आर चर्च, लाइव चर्च। आप बहुत दूर दूर से हैं, अलग अलग जगह से हैं, लेकिन हम लोग एक टाइम के साथ जुड़ जाते हैं खुदा उनके साथ, और परमेश्वर की एक साथ बैठ करके आराधना करते हैं। रियली अमेजिंग। हालेलुया। सो वी विल जॉइन मंडे। हालेलुया। अगर कल टाइम मिला तो मैं आऊँगा, और मॉर्निंग डेली प्रार्थना में आप जरूर शामिल हो जाएं। मॉर्निंग डेली प्रार्थना में आप जरूर शामिल रहें, क्योंकि हर रोज़ हम लोग जो हैं वो प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। कोई ना कोई मैटर को लेकर के हम प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर डेफिनेटली आपको जो है वो टच करेंगे। कितनों को आज का वचन अच्छा लगा और समझ में लगा? गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. जी सिस्टर एलएस जी, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और डेफिनेटली परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। जी सिस्टर गीता गुप्ता जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा पर्सनल। मैं आपके लिए प्रार्थना में बैठूंगा, और आपको डेफिनेटली परमेश्वर ब्लेस करेंगे।
Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Okay, then God bless you. Thank you, sister. God bless you. Effective word of God. God bless you, sister Poonam. Manoj Kumar. God bless you, brother. Thank you. जी सिस्टर कैट पीटरसन, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, डेफिनेटली परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप जो है वो अपने जो जॉब में आपको प्रॉब्लम है उससे आप आज़ाद हो रही हैं। खुदा परमेश्वर आपको आज़ाद कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। ओके, वी आर लिविंग। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।